مثال کے طور پر انہوں نے جب ایک ایگزامپل دیا کہ کچھ قرآن آئے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے جس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود ہے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہے، الحی القیوم جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہاں پہ اس کے پڑھنے میں کچھ فرق ہے. ایک بات میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اور جب لکھا گیا تھا قرآن کریم تو اس ٹائم پہ اس کے اوپر دمہ کسرہ زیر زبر پیش یہ دیا ہوا نہیں تھا، کیونکہ عربوں کے بیچ میں نازل کیا گیا تھا. اور آج بھی جو عرب حضرات قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے لیے دمہ کسرہ اور پیش جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ بعد میں جو نان عربس ہے جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں عربی زبان ایز اے لینگویج نہیں آتی تو ہم لوگ اس کو اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، تو یہ زیر زبر اور پیش میں دیا گیا تاکہ ہمیں تلاوت میں آسانی ہو. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے زیر زبر دینے سے صرف اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گئی. اور قرآن جو ہے تلاوت ہے، اور قرآن کی کئی طرح کی تلاوت ہوتی ہے. جو قاری حضرات ہیں جو قراء ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہفت 7 سٹائلز میں 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. پڑھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن میننگ میں ذرا بر بھی کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آپ آ کے فل سٹاپ دے سکتے ہیں. و ایاک نستعین پہ آپ رک سکتے ہیں، یا پھر و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، نون سے آپ آگے کنٹینیو کر دیا، آپ نے ہے کو ساتھ میں لے لیا اور اس کو کنٹینیو کر دیا. صرف پڑھنے میں فرق ہے لیکن اس کے میننگ میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. نہ وہاں پہ کسی الفابیٹ کا ایڈیشن کیا ہوا ہے. قرآن میں جو ہے اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. امید ہے سوال کا جواب. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن میں 40-3 نمبر کے سورے میں آتا ہے ایک جگہ ذکر، اور دوسرے جگہ کہاں پہ آتا ہے اس طریقے سے رسول اللہ خدا کے آخری نبی ہیں؟ چچا نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سورت نمبر 40 میں اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کیا کہیں پہ ذکر ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 40 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد آپ میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور وہ رسول ہیں وہ خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. تو یہ ایک آیت ہے جو میری نظر میں اب تک ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہوں گے. امید ہے سوال کا جواب ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی آیت ہے تو میں سلسلے میں جانکاری رکھتا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے نہیں ہیں، اس کی کیا معنی ہے؟ چچا نے سوال ابھی یہ پوچھا ہے کہ اسی آیت میں لکھا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے نہیں ہے. چچا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے مردوں میں سے نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد از ناٹ دا فادر آف اینی آف یور مین، وہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. وہ یہ نہیں تھے آپ کے مردوں میں سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی ہے اللہ تعالیٰ کے اور خاتم النبی ہے. تو اس طرح سے وہ آیت ہے اس کا ترجمہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہر ایک قرآن میں معنی الگ الگ ہوتا ہے، مطلب جو بھی قرآن کی لکھتے ہیں ترجمہ اپنے اپنے اینگل سے لکھتے ہیں، تو معنی سمجھنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ایک مودودی ہو یا کچھ اور قرآن میں ہو، معنی ٹوٹلی ڈفرینٹ اینگل سے ہوتا ہے. تو ہم کو کیسے پتہ چلے کہ کون سا معنی صحیح ہے یا اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ الگ الگ ٹرانسلیشن میں الگ الگ ترجمے میں معنی میں فرق ہوتا ہے. کوئی ٹرانسلیٹر جو ہے، کوئی مفسر یا کوئی ترجمہ کرنے والا شخص اس لفظ کا کچھ الگ معنی لکھے گا، کوئی شخص اس لفظ کا کچھ الگ معنی لکھے گا. تو ہم کیا کریں کنفیوژن دور کرنے کے لیے؟ اس کا سب سے بیسٹ، سب سے بہترین اپائے یا علاج یہ ہے کہ انسان عربی سیکھ لے. جیسا میں نے سب سے پہلے کہا کہ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ انسان خود عربی زبان سیکھ لے. ہم لوگ دنیا بھر کی کافی سارے زبانیں سیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ انگلش سیکھتے ہیں، تمل سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، ملیالم سیکھتے ہیں، ملیالم جیسی کٹھن زبان سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھتے ہیں، لیکن ہم عربی نہیں سیکھتے. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ हम लोग उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे, इल्म की तलब रखे। इल्म हासिल करने की तलब रखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग कोशिश करें, एक आम तौर पे एक बेदारी हमारे लोगों में कि हम अरबी सीखने की कोशिश करें। और जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कुरान में एक आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि वो वक्त कब आएगा। मतलब अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, और माँ के पेट के अंदर क्या है। अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे कुरान का तो कई उर्दू तर्जुमे में आपको मिलेगा कि कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, और कोई नहीं जानता कि माँ के पेट के अंदर बच्चे की जिन्स क्या है, लड़का है या लड़की है। लफ्ज़ जिन्स वहाँ पे ऐड किया हुआ है, सेक्स, फीमेल या मेल, लड़का है या लड़की है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और आज हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि माँ के पेट में क्या है, बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। तो हमें पता चलता है कि कुरान की इस आयत में अरबी पोर्शन में, अरबी जो हिस्सा है उसमें कहीं पे भी लफ्ज़ जिन्स नहीं है, लफ्ज़ सेक्स कहीं पे भी नहीं है। इसके बावजूद ट्रांसलेशन करने वाले लोग कुरान में अपनी तरफ से आइडियाज़ डाल के ये एक लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कुरान को तर्जुमे के साथ जानने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लोग अरबी ज़बान को बतौर ज़बान सीखने की कोशिश करें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान थी, अल्लाह ताला ने जो इस पर कुरान नाजिल किया, और इस तरह हम लोग कुरान को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है सवाल का जवाब हो। आखिरी सवाल इंशाल्लाह बहनों की जानिब से हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुरान के अल-अहज़ाब की एक आयत में पर्दे के बारे में कुछ पढ़ा था। उसमें लिखा है कि पर्दा किया जाए ताकि औरत की शनाख्त ना हो। ऐसे ही मैंने पढ़ा था। शनाख्त का मतलब क्या ये है कि हम चेहरा छुपाए? बिकॉज शनाख्त तो चेहरा दिखाने से हो सकता है, चेहरा छुपाने से ही शनाख्त नहीं हो सकता है। कैसे खुलासा दे सकते हैं? सिस्टर ने सवाल पूछा है कि सूरह अहज़ाब की आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमान औरतों से पर्दा करने के लिए ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। सिस्टर ने कहा है कि उसकी शनाख्त न हो सके, तो चेहरा छुपाने के ताल्लुक से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़रा माइक पे आए सिस्टर प्लीज़। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिस्टर ये जानना चाहती है कि चेहरा ढांकना कंपलसरी है या नहीं है? हाँ जी, मैं यही जानना चाहती हूँ। आपके नज़दीक कंपलसरी है? हाँ। सिस्टर का सवाल ये है कि चेहरा ढांकना कंपलसरी है क्योंकि शनाख्त न हो, और सूरह अहज़ाब की एक आयत का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में कहते हैं कि औरतों से कहो कि पर्दा कर ले ताकि आपकी शनाख्त न हो। जिस आयत का हवाला दे रहे हैं सिस्टर वो है सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 59। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहो, वो बनाती का, और अपनी बेटियों से कहो, वो निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैनी वकान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, कि वो अपने आप को जिल्बाब में ढाल लें जब वो बाहर जा रही हों, अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें ताकि उनकी शनाख्त हो। कुरान की आयत ये नहीं कहती कि उनकी शनाख्त न हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल दे, अपने ऊपर चादर ओढ़ ले ताकि उनकी शनाख्त हो। कैसी शनाख्त हो? शनाख्त ये हो कि वो नेक औरतें हैं, वो पायस हैं, वो रिलीजियस औरतें हैं, वो पाक औरतें हैं, ताकि उनको कोई छेड़ न सके, ताकि उनको कोई छेड़े ना। तो कुरान की आयत ये नहीं कहती कि उनकी शनाख्त न हो, बल्कि कुरान की आयत कहती है कि उनकी शनाख्त पाक बाज औरतों में हो, नेक औरतों में हो, लोग उनको पहचाने कि वो नेक औरत है। जहाँ तक चेहरा ढकने का ताल्लुक है, तो मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कहूँगा कि गो के कहीं पे भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप चेहरा ढाको, ये आपके लिए कंपलसरी है। न कोई सही हदीस है, कोई भी सही हदीस ये नहीं कहती कि चेहरा ढकना कंपलसरी है। कोई भी सही हदीस ये नहीं कहती कि चेहरा ढकना कंपलसरी है। लेकिन जो औरतें चेहरा ढाकती हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप चेहरा खोल दें, क्योंकि बेहतर है, मुस्तहब है कि वो औरतें चेहरा ढाकती है उसको कंटिन्यू करें। और इस सिलसिले में, चेहरा ढाकने के सिलसिले में कई हदीसें दी जा सकती हैं जिनसे पता चलता है कि चेहरा ढाकना कंपलसरी नहीं है। जहाँ तक खिमार का ताल्लुक है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला पीछे छूट गए थे, तब वो जो सहाबी उनके पास आए तब उनका चेहरे का कपड़ा हिटा हुआ था ताकि उनको
उनसे पहले देखा हुआ था, इसलिए तो this shows the Aisha radiallahu ta'ala was covering her face also. बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टर ने एक आर्गुमेंट दिया है। सिस्टर ने कहा है कि हमें पता चलता है कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने चेहरे को कवर किया था। तो चेहरा कवर करना ये एक स्पेसिफिक हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन थी। ये हुक्म आम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म था, कंपलसरी था, लेकिन हम आम मुसलमानों के लिए वो मुस्तहब है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन जो थी उनके लिए चेहरा ढकना कंपलसरी था, लेकिन उसके बरअक्स मैं सही मुस्लिम की हदीस पेश करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर उन्होंने मर्दों के बीच में वाज किया, नसीहत की, ईद का खुतबा दिया। उसके बाद में औरतों के बीच में जाकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो, क्योंकि मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें ज्यादा थी। तो हदीस कहती है तो एक औरत खड़ी हुई जिसके गाल के ऊपर एक काला स्पॉट था, काला तिल था, और उसने कहा कि ऐसा क्यों या रसूलल्लाह? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्योंकि आप अपने शोहरों की नाफरमानी बहुत ज्यादा करती हो। इससे पता चलता है कि चेहरा खुला रखने की इजाजत उस टाइम पे थी। अगर आप पढ़ेंगे सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है कुल्लिल मोमिनाती, या कह दो मोमिन औरतों से कि अपनी निगाहें नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उस हिस्से के जो जाहिरी तौर पे दिखाई दे, जो आम हालात में दिखाई दे। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इस इल्ला मा ज़हरा मिन्हा इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान की फहम अता करो, कुरान की समझ अता करो। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब होता है कि चेहरा और हाथ। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सही सनद साबित है। शेख नासिरुद्दीन अलबानी इसको लेके आते हैं हिजाब अलमिरा अल मुस्लिमा में, इसकी सनद को पेश करते हैं, कहते हैं कि सही हदीस है। और इस टॉपिक को लेकर के शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने कंप्लीट किताब लिखी है जिसका नाम है रद्दुल मुफहिम और हिजाब अलमिरा अल मुस्लिमा, जिसमें उन्होंने कंप्लीट जो एस्पेक्ट्स है, जिल्बाब का मतलब क्या होता है, खिमार का मतलब क्या होता है, और कौन सी हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि चेहरा ढकना मुस्लिम औरतों के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप चेहरा ढाक रही हैं तो उसको बंद कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अल्लाह आलम।